So welcome viewers, welcome to our channel, My Student Adda. Today we are back with another virtual interview experience of Three Pillar. Today we have with us a very special guest, Akash from IT batch to 2021, who is successfully placed in Three Pillar. So welcome Akash, welcome to our channel. Hello, thank you. So as you know, Akash, we will start with some interview questions as many of the student has queries how to get placed in such companies. So you have to explain about the whole recruitment process based upon we have prepared some questions. So let's proceed. Sure. Okay. So our first question is Akash, number of rounds you have faced in three pillars. Actually, there are three rounds. First is the technical test, which includes the technical MCQs plus the aptitude and the verbal. And second section is of the coding. There was only one question, which was a basic level, and one needs to clear means get the average marks in clearing the test. Okay, Akash. So, what was the level of coding, and if you remember, what are the types of coding was there? There was only one question. It was of the basic level. Okay. It means it is of the most the coding part is most important as compared to the MCQs. Okay. So it was based upon what type, like array, string, or something else? It is basically based on the array. Array. Okay. Hmm. So Akash, now our next question is elaborate about the technical round, technical interview, basically. My technical interview was about 40 minutes, and actually the interviewer first of all makes everyone comfortable by asking the normal question related to the personal life. First of all, there was the introduction part, which I've done means explained about my introduction, in which I Okay. included the project as well. Based Okay. on it, the interviewer asked about my project, and then he told me to show the project means by sharing the screen, and then means he was satisfied by as I showed the project and explained all about the in detail. Okay, Akash. So the duration of the interview was how many minutes? It was 40 minutes. 40 minutes. And Okay. first of all, there was an introduction. Second is Okay. the project explanation about the project. Then the interviewer asked about the whether I'm interested in any sports or any kind of activities like that, physical activities. Okay. And then he asked me about the how I manage time, as I mentioned the that I have a good management skill. Okay. So means he cross questioned me about that thing only. And then last question was that about the what was the biggest challenge I faced in my life till now. तो मैंने उसको मतलब एक्सप्लेन तो कर दिया इंटरव्यूअर को, अच्छा. और उन्होंने मतलब पहले तो वो एकदम कंफर्टेबल कर देंगे कि ताकि कोई पैनिक ना हो और कोई मतलब स्टूडेंट जो भी है या मतलब पैनिक ना करें एक्सप्लेन करने में। फ्रैंक है एकदम वो लोग, अभी भी हम लोग जब इंटर्नशिप चल रही है उसमें, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। इंट्रोडक्शन तो बेसिक पार्ट है, वो चाहे एचआर राउंड में होगा, टेक्निकल राउंड में होगा, दोनों में होगा। और अभी भी हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, तो अगर कोई नया ट्रेनर आता है तो उसको भी हम लोग इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ता है। और इंट्रोडक्शन में अगर हम इंक्लूड करें प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और एक कोडिंग क्वेश्चन भी उसमें करवाया था, और कोडिंग क्वेश्चन डिपेंड करता है कि मतलब पर्सन टू पर्सन जो भी इंटरव्यूअर होता है। जैसे कि मेरे से तो एक कोडिंग क्वेश्चन करवाया, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने में चला गया था, तो वो सेटिस्फाइड थे प्रोजेक्ट के एक्सप्लेनेशन पे, और ज़्यादा कुछ उतना डिफिकल्ट हुआ नहीं। लेकिन बाकी मेरे और भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने उनका भी इंटरव्यू हुआ था, जैसे कि रीति थी, उसका मतलब उससे प्रोजेक्ट से कम डिस्कशन हुआ, लेकिन उससे 4 कोडिंग क्वेश्चन करवाए थे। तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए, मतलब किस बेसिस पे वो जज कर रहा है। Okay, आकाश. So आकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआर राउंड के बारे में कुछ बताओ. एच अराउंड भी मीन्स सिंपल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ था।
HR राउंड में भी ज़्यादा कुछ वैसे हुआ नहीं, उसमें भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हुआ था। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट उसमें भी इंक्लूड किया, एक्सप्लेन किया कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, तो इंटरव्यूअर को फिर एक्सप्लेन करना पड़ा कि जैसे एपीआई कैसे उसमें वर्क करेगा, कि कैसे करेगा। तो वो उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने जैसे कि जब टेक्निकल जैसे मेरा राउंड हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने कुछ बोला था कि स्क्रीन शेयर करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वैसे ही जब एचआर में इंटरव्यू समझ नहीं पा रहा था क्वेश्चन को, मतलब जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं स्क्रीन शेयर करके उनको समझा दूं। ठीक है, तो उन्होंने फिर मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, स्क्रीन शेयर करके समझा दो। तो वो बहुत ही मतलब अच्छा रिफ्लेक्शन हुआ कि हम लोग ने एक्सप्लेन मैंने उसको उनको एक्सप्लेन कर दिया था प्रोजेक्ट। नहीं तो अगर वर्बली मैं समझाता तो वो मतलब उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे उस प्रोजेक्ट को। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग क्यूए प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, तो आप लेकिन आप डेवलपर हो, जैसे कि आपने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, तो ये तो डेवलपर का पार्ट आता है, तो आप कैसे स्विच कर पाओगे? तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि मतलब मेरे को कोई इशू नहीं होगा उसमें क्यूए में स्विच करने के लिए, क्योंकि कि डेवलपर का जो पार्ट होता है वो डेवलप करना होता है सॉफ्टवेयर को, और क्यूए का पार्ट होता है उसको टेस्टिंग करना और एरर फ्री करना। तो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि जो भी उसकी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि एज अ डेवलपर मैंने काम किया अपने प्रोजेक्ट पे, और अब क्यूए पे स्विच कर देंगे तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा। ओके आकाश, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बताया कैसे आप स्विच कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है एचआर राउंड में भी। सो आकाश, आपने तो बता दिया कि प्रोजेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है सेकंड राउंड टेक्निकल राउंड में, बट फिर हम स्टिल जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट्स में मतलब आपने ऐसे कैसे टैकल किया जिससे आपका ज़्यादा टाइम मतलब उसमें प्रोजेक्ट्स में लग जाए और वो कम से कम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे एलिमिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस है। लाइक कोडिंग अगर 3-4 पूछ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हम एलिमिनेट हो जाएंगे अगर 2 या 3 से ज़्यादा पूछ रहे हैं। बट प्रोजेक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर हमें कम टाइम मिलेगा इंटरव्यूअर को भी पूछने के लिए ऐसे क्वेश्चंस जिससे हमारे इलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा है। तो उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर प्रोजेक्ट में हम लोग ने ज़्यादा टाइम ले लिया तो हमें मीन्स कोडिंग क्वेश्चन कम करवाएंगे। वो डिपेंड करता है इंटरव्यू पर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला ओके। कि कैसा कोई इंटरव्यूअर किस पैटर्न पे फॉलो करता है अपना जजमेंट, किस मतलब प्रोसेस फॉलो करेगा वो। तो प्रोजेक्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अगर किसी भी कंपनी के लिए, जब कोई बंदा बैठ रहा है। तो अगर हमने प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो उतना उनको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप मीन्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो उनको बस बेसिकली एक कोडिंग क्वेश्चन करा के वो अपना और मतलब क्लियर कर लेंगे व्यू कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना। उसी के बेसिस पे आप नेक्स्ट राउंड पे जा पाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस जो मेरा हुआ था वो एक ही दिन का प्रोसेस था। In the morning, 9:45 there was a pre-placement talk. Then at 11 there was the online test. By 11, 12:30 or so the result came, and the I was being shortlisted for the technical round, means a technical interview. And as I finished the technical interview, just after then the my HR was scheduled. So it was means around 1 or 3, means at 3 p.m. I was having my HR, and then the result came about 7 p.m. or so. So प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, और अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो एकदम उनको क्लियर हो जाएगा। और आप वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर वो उनकी फील्ड को मीन्स से रिलेटेड है तो वो इजीली समझ जाएंगे कि आपने किस वे में जाके आपने प्रोजेक्ट बनाया है। अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर वो उनको फिर मीन्स और कोडिंग क्वेश्चन पे उनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फिर प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कोई फोकस किया नहीं और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो लास्ट पार्ट उनका बचेगा कोडिंग और टेक्निकल मीन्स क्वेश्चंस डिपेंड करेगा। एमसीक्यूज मीन नॉट एमसीक्यूज, वर्बल और वर्बल क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग डीबीएमएस, या फिर जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल आपने मेंशन किया रेज्यूमे में। और जो भी रेज्यूमे में आप मेंशन करेंगे वो ज़रूरी होना चाहिए कि आपको वो आए। अगर आपको नहीं आएगा तो वो आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने बस टाइम पास के लिए उसमें मेंशन कर रखा है। और मेरे जितने भी मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुए वो सब मेरे मीन्स उन्होंने अपना मेरा रेज्यूमे साइड में खोल रखा था, उसी को वो देख के और मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे थे।
जैसे कि जावा। अब जावा मैंने मेंशन किया था, तो फिर उन्होंने जावा से कोडिंग क्वेश्चन करवाया था। उसके बाद उन्होंने मींस एज मैंने साइबर सिक्योरिटी मेंशन किया था, लेकिन उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई। लेकिन अगर मैंने मैनेजमेंट स्किल बोला था, और मैंने फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैंने कैसे मैनेज करता हूँ अपना पूरा होल डे प्रोसेस, या फिर और भी कोई टास्क अगर मेरे को कोई मिल जाए तो। या आकाश, तो काफी मतलब हैक्टिक शेड्यूल था उस दिन, बट या ग्रेट की अच्छा मतलब प्लेसमेंट हो गए, और काफी अच्छा उन्हें स्किल सेट भी चाहिए था जो आपके पास था, तो आपने कर दिया। तो ये हमारे जनरल क्वेरीज खत्म हो गए। अब Q&A में चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली सबके दिमाग में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो क्रैक कर प्लेसमेंट इंटरव्यूज क्रैक करने में हेल्प करते हैं CSIT के? CSIT के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है, पहले तो आपका वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है जो आपने मेंशन कर रखी है। आपको उसमें अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप अगर कोडिंग क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड इज द DBMS। डीबीएमएस से डीबीएमएस के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। और उसके बाद DBMS SQL क्वेरीज भी करा सकते हैं उसमें। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कैसी कंपनी और मीन्स इंटरव्यू को कब उस इन्वॉल्व करना है उस सब्जेक्ट को कि नहीं करना है। सेकंड, जैसे कि मैंने एंगुलर मेंशन किया था अपने प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट मैंने बनाया और रिज्यूमे में, तो एंगुलर भी मुझे बेसिक नॉलेज थी, तो अगर मेरे से उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता। और उप्स कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और डेटा स्ट्रक्चर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज या फिर एडवांस नॉलेज भी चलेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका मींस पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इंटरव्यू के टाइम पे, अगर आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया तो। उप्स कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। हर कोई कंपनी, जैसे कि मैंने TCS का भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने मतलब मेरे प्रोजेक्ट पे फोकस किया था, और इंटरव्यू को भी उसकी नॉलेज थी, तो वो अच्छे से समझ पाए थे जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। क्योंकि अगर इंटरव्यू अगर डिफरेंट फील्ड का होगा तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मैं समझ नहीं पाएगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वही मेरा एंगुलर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था मेरा। उसके बाद जावा की नॉलेज इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद उस उप्स कॉन्सेप्ट और DBMS सबसे इंपॉर्टेंट देता है आपका प्रोजेक्ट। उसी के बेसिस पे आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग वैलिड होगी। और अगर आप उस पर नहीं कर पाए तो आपसे फिर फॉर्मेलिटी के लिए आपसे पूछना ही पड़ेगा उनको कुछ ना कुछ। ओके आकाश, तो सब्जेक्ट्स लाइक ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डा हो गया, इन सब से मतलब उतना कुछ पूछा नहीं या? अ, मेरे केस में उस सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ मीन्स फोकस नहीं किया। लेकिन नॉर्मल जो मेरे सब्जेक्ट से, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड या मेरी रेज्यूमे से रिलेटेड, उस पे मेरे पे ज़्यादा फोकस किया था। इक्वली इंपॉर्टेंट वो भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पूछते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी कुछ पार्ट आ जाते हैं जहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। लेकिन वो डिपेंड करता है, आपको बेसिक नॉलेज तो हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि आपने बीटेक की लाइफ में अपना वो, अगर आपके सेमेस्टर में आए हैं वो सब्जेक्ट, तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई उससे तो। अच्छा आकाश, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कुछ इस कंपनी के बारे में रिसर्च तो किया ही होगा, और हमें QA इंजीनियर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दीजिए कि होते क्या हैं, और डिटेल में थोड़ा। मीन्स मैंने जब फॉर्म फिल किया था इस कंपनी का तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। एज ऑफ मेरे को कोई मीन्स 3 पिलर के बारे में पहले से कोई नॉलेज नहीं थी। न्यू कंपनी मेरे लिए तो थी ये। तो वो QA ऑटोमेशन पे वर्क करती है ये। बेसिकली मेरा भी प्रोफाइल QA इंजीनियर का ही है। तो इसमें बेसिकली जो QA इंजीनियर का पार्ट होता है वो, हाउ कैन वी टेस्ट द सॉफ्टवेयर एंड इंश्योर दैट द फाइनल प्रोजेक्ट इज मींस फ्री ऑफ एरर फ्री। एरर्स। हम लोग एरर फ्री। एंड हाउ कैन वी मींस remove the human intervention in it and remove the redundancy as well. ओके आकाश। सो आकाश, अगला क्वेश्चन, आपने आपको किस टेस्टिंग टूल्स के बारे में नॉलेज अच्छे से है, जो इस प्रोफाइल में आपको लगता है काम आएगा, और आपका फ्यूचर में हेल्प होगा उससे? और हमें और भी कुछ टेस्टिंग टूल्स बता दीजिए जो हेल्पफुल होंगे। मीन्स मैंने
इस इंटरव्यू से पहले मैंने कोई टेस्टिंग टूल की मेरे को नॉलेज नहीं थी जो भी क्यूए ऑटोमेशन में या क्यूए इंजीनियर यूज करते हैं, बट सेलेनियम में एक ऐसा मींस टूल है जो कि यूज किया जाता है क्यूए ऑटोमेशन में, जो कि वेब ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है एपीएम, वो यूज किया जाता है मोबाइल ऑटोमेशन के लिए। ये दो टाइप के टूल्स हैं जो कि हम लोग बेसिकली ऑटोमेशन में यूज करेंगे। और भी आपको अगर इस प्रोफाइल में आपको हायर किया गया तो आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं टूल्स के लिए, टूल्स जो भी यूज किए जा रहे हैं। अभी जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है वो एपीएम और सेलेनियम के बेसिस पे चल रही है। ओके आकाश। सो आकाश, आखिरी क्वेश्चन, हम जानना चाहेंगे आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बारे में। Basically, my final year's project was that it is of the weather forecasting application, which is used to detect the means the air pollution as well as the weather forecast of a particular location. In it, I've used the Angular as a front end, Spring as the back end, and then Bootstrap is also used in it. It is a means a framework which is used to design the website, means faster and easier. Spring Boot is also used in it. It is also a Spring framework, Spring Web Services, and I've used the Open Weather Map API, which is being used for the linking purpose. How can we get the databases linked to our application as well? Then I've used the MySQL. It is a relational database management query, management system based on the SQL. And then the various APIs were also used in it. Weather app API, pollution API, and that's it. Yeah, it was amazing, really amazing project. Very lots of type of APIs were used. यार API यूज करना काफी अच्छी बात है। API हमारे काम को काफी आसान बनाते हैं, बहुत लोग यूज नहीं करते। बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट में आपने यूज किया, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। Okay, so Akash, thank you for being here and give us your valuable experience with us. I hope all our viewers will get benefited from your experience. And again, thank you so much. Thank you so much for calling.